اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ زندہ دلان کے شہر پر کرونا کا خطرہ ایک مرتبہ پھر سے منڈلانے لگا ہے۔ 3 ماہ کے دوران کرونا کیسز کی شرح میں اضافہ ہوا۔ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا مثبت شرح 2.8 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں عظمت عوان سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ کورونا کا خطرہ ایک بار پھر شہر لاہور میں منڈلانے لگا ہے، اور 3 مارچ کے بعد شہر میں جو کورونا کی مثبت شرح ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آج شہر لاہور میں کورونا کی مثبت شرح 2.8 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ پنجاب بھر میں کورونا کی مثبت شرح 1.3 ریکارڈ کی گئی ہے، اور شہر لاہور میں کورونا کی مثبت شرح سب سے زیادہ ہے پنجاب کے دیگر شہروں کے مقابلے میں۔ اور طبی ماہرین نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ کورونا کی چھٹی لہر سے بچنے کے لیے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائیں، اور ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا لی ہیں وہ فوری طور پر بوسٹر ڈوز لگوائیں، اور جنہوں نے بوسٹر ڈوز بھی لگائے ہوئے 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا وہ فوری طور پر ایک اور بوسٹر ڈوز لگوائیں، اور جو بزرگ افراد اور ایسے افراد جو کسی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے وہ فوری طور پر ویکسین لگوائیں اور خود کو جو ہیں اس جو چھٹی لہر سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کریں۔ لیکن اس کے علاوہ جو تمام شہری ہیں وہ بھی سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اور ماسک کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں، اور اگر ہم ان احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کریں گے اور ویکسین لگائیں گے نہ کہ چھٹی لہر سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے عظمت عوان، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کا ہیلتھ کیئر میں اسٹریٹجک اصلاحات شروع کرنے کا فیصلہ۔ مصنوعی اعضاء کے لیے ساز و سامان کی تیاری میں اداروں کی مدد لی جائے گی اور اس حوالے سے مدد فراہم بھی کی جائے گی۔ مزید احوال جان لیتے ہیں عمر اسلم سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے پاکستان میں ہیلتھ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اسٹریٹجک اصلاحات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں سربراہ وزیر اعظم اسٹریٹجک ریفارم سلمان صوفی نے کہا ہے کہ ابتدائی طور پر معذور شہریوں سے مصنوعی اعضاء کے لیے ساز و سامان کی تیاری پر کام کرنے والے اداروں کی مدد کی جائے گی اور ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا، جبکہ سیریبرل پالسی سے متاثرہ مریضوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بین الاقوامی سطح پر رائز میوزک تھراپی جیسے اقدامات متعارف کروائے جائیں گے۔ اس پروگرام کے حوالے سے دماغی فالج کے مریضوں کے لیے خصوصی ویل چیئر، دیگر معذور شہریوں کی مدد کے لیے آلات پاکستان میں کم قیمت پر تیار کیے جائیں گے تاکہ یہ عام شہریوں کی دسترس میں ہوں، جبکہ حکومت معذور شہریوں کو ان کی نقل و حرکت کے لیے درکار اہم سامان کو سبسڈی پر فراہم کرنے کے لیے بھی اقدامات کرے گی۔ جی مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ عمر اسلم، آپ ہمارے ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف، آئی جی اور چیف سیکریٹری کی شرکت۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس کا احوال جان لیتے ہیں عمر اسلم سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم پاکستان میں محمد شہباز شریف اپنی رہائش گاہ سے مسلم لیگ سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن پہنچے، جہاں پر آئی جی پنجاب، چیف سیکریٹری وزیر اعظم پنجاب بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اس اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورت حال کے حوالے سے جو ہے وہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم پاکستان میں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں، اور اس حوالے سے بھرپور اور یقینی اقدامات کیے جائیں۔ جی بھرپور اور یقینی اقدامات کیے جائیں۔ عمر اسلم، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب بھر کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ پنجاب حکومت کا 16,000 ٹیچرز فوری بھرتی کرنے کا اعلان۔ اساتذہ کی بھرتی پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں کی جائے گی۔ اساتذہ کی تعداد میں ہر سال اضافہ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 16,000 اساتذہ فوری طور پر بھرتی کیے جائیں گے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں جنید جیا سے۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا، بھرتیوں کا آغاز کب سے ہوگا؟ جی، جو گزشتہ روز خبر دی تھی، انتخاب کیا گیا تھا کہ اساتذہ کی جو خالی اسامیوں کی تعداد ہے وہ 1,06,000 پر پہنچ گئی ہے، اور اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کی وجہ سے بچوں کو پڑھانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، اور مزید ٹیچر جو ہیں اس سال ریٹائر ہونے کا امکان ہے۔ تو اس صورتحال میں سابقہ دور حکومت میں ایک بھی ٹیچر کی 4 سالوں میں بھرتی نہیں کی گئی تھی، اور جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ اسکولوں کا نظام ہوتا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 16,000 ٹیچر کی فوری بھرتی کی جائے گی، اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے اور ہر سال جو ہے ٹیچروں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے سینئر رہنما مسلم لیگ نون رانا مسعود احمد خان کا کہنا ہے کہ پچھلی جو نون لیگ کی حکومت تھی اس میں 2,30,000 ٹیچرز بھرتی کیے گئے تھے، اور اس سال بھی مرحلہ وار ہمارے دور حکومت میں مزید ٹیچر جو ہیں وہ بھرتی کیے جائیں گے، اور اس سے بے روزگاری کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ جی
ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की बिजली बचाओ मुहिम शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स में कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल, शॉपिंग मॉल्स, जनरल स्टोर्स, बेकरियां बंद। इचरा बाजार, शादमान, जेल रोड, घड़ी शाहू, धर्मपुरा, बागबानपुरा, शालीमार लिंक रोड समेत शहर भर के बाजार सुनसान हो गए हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं सईद अहमद सईद। जी सईद। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की बिजली बचाओ मुहिम के तहत आज लाहौर भर के जो शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें हैं वो बंद हैं, और इनमें अगर बात करें शहर फहरिस्त पे शहर की बड़ी मार्केटें हैं उनमें इचरा मार्केट समेत अनारकली, गड़ी शाहू, शादमान समेत जो दीगर बड़ी मार्केटें हैं वो मुकम्मल तौर पर आज उन पर कारोबार है वो बंद है। जबकि इसके साथ साथ अगर बात कर लें बेकरी आइटम्स की, तो बेकरी समेत जो नाश्ता पॉइंट्स हैं उनको भी आज सुबह सवेरे से ही बंद रखा गया, और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से इस अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए जो ज़िली इंतज़ामिया की टीमें और लाहौर पुलिस के जो एहलकार हैं वो गश्त भी कर रहे हैं, ताकि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बिजली बचाओ मुहिम के तहत फैसला किया गया था कि इतवार के रोज़ मुकम्मल तौर पर शॉपिंग मॉल्स और जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद रखे जाएंगे। इस वक्त इचरा के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर कारोबारी ज़िंदगी है वो मुअत्तल है। सुबह सवेरे से ही यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया की अमला और इसके साथ साथ पुलिस की जो टीमें हैं वो गश्त करती रही, और जो चंद एक दुकानें खुली थी उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद है वो करवा दिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि जो हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया उसके बाद पहले मरहले के अंदर जो चंद चीज़ें हैं वो बंद की गई हैं, जिनमें वेयर हाउस, गोदाम, जनरल स्टोर और बेकरी समेत तमाम मार्केटें हैं वो शामिल हैं, और दूसरे मरहले के अंदर मज़ीद भी इसमें चीज़ें हैं वो इंक्लूड हो सकती हैं। लेकिन फिल वक्त आज सुबह सवेरे से ही कारोबारी ज़िंदगी है मुकम्मल तौर पर शहर की तमाम मार्केटों में बंद है। सिर्फ जो मेडिकल स्टोर्स हैं, तंदूर हैं जहाँ पर टेक अवे की इजाज़त दी गई है, उसके साथ साथ जो सेहत के शोबे से मुतल्लिक़ हैं, अस्पताल हो गए, डिस्पेंसरी के, उनको ही कारोबारी ज़िंदगी चलाने की इजाज़त है वो दी जा रही है। ठीक है, बहुत। सगिया मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बकरे, गाय, बैल और ऊंट सगिया मंडी की जीनत बन गए। मंडी में गाहक न होने की वजह से मवेशी मालिकान परेशान हैं। गाहक क्यों नहीं आ रहे, मजीद जान लेते हैं हाफिज़ दिलावर से। जी हाफिज़, आगाह कीजिएगा। हाफिज़ दिलावर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, गाहक क्यों नहीं आ रहे, मवेशी मालिकान जो हैं वो परेशान क्यों हैं? हाफिज़ दिलावर से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि सगिया मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। बकरे, गाय, बैल, ऊंट सगिया मंडी की जीनत बन रही हैं। मंडी में गाहक ना होने की वजह से मवेशी मालिकान परेशान हैं। मवेशी मालिकान कहते हैं कि ईद के करीब जाकर मंडी में तेज़ी आएगी। बकरे, गाय, बैल और ऊंट सगिया मंडी की जीनत बन चुके हैं, जबकि मालिकान परेशान हैं मंडी में गाहक ना होने की वजह से। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हाफिज़ दिलावर से। जी हाफिज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की तैयारियों का सिलसिला जारी है, और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो मंडियाँ हैं, मवेशी मंडियाँ, वो लगा दी गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर सगिया मंडी में, और यहाँ पर जो है जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से, शहरों से जानवर यहाँ पर व्यापारी जो है वो लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि दिन में जो गर्मी होने की वजह से गाहक जो हैं वो फ़िलहाल मंडी में कम है, जिसकी वजह से ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला इतना ख़ास नहीं है। जबकि रात होते ही मंडी में जो है ख़रीदारों का रश हो जाता है, और गाहक जो हैं वो यहाँ पर मवेशी जो है वो ख़रीद कर यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे व्यापारी हैं उनका ये भी कहना है कि जैसे ही ईद में अभी कुछ दिन बाकी हैं, जैसे ईद करीब आएगी तो ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। जी ठीक है हाफिज़ दिलावर, आपका बहुत शुक्रिया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर मरकज़े निगाह बने हुए हैं, जबकि पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद हमें अहवाल से आगाह कर रहे हैं हसनैन औलख। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में मौजूद हैं, और मवेशी मंडी की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर
जो जानवर हैं वो आने का सिलसिला जारी है। खूब से खूब तक जो जानवर हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं मवेशी मंडी में। अगर बात की जाए छोटे जानवरों की तो जिनमें बकरे, मेंढे, छतरे वगैरह आते हैं, मेरे अकब में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर खूबसूरत तरीन जो किस्म के जानवर हैं, बकरे या फिर छतरों की बात की जाए, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर बड़े जानवरों की बात की जाए तो बड़े जानवरों में भी बहुत खूबसूरत किस्म के जो बैल हैं, जो वेड़े हैं, वो यहाँ पर मवेशी मंडी में पहुँच चुके हैं और बड़ी तादाद में जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। लेकिन अगर कमी है किसी बात की तो कमी इस बात की है कि जो ख़रीदार है वो बहुत कम रुझान उनका देखने में आया है कि वो यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त के लिए आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए कि इस रुझान की तो जो रेट्स हैं इस दफ़ा मंडी के रेट्स जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जो लागत है व्यापारी कह रहे हैं कि वो पिछली दफ़ा से 50% बढ़ गई है। यानी कि पिछली दफ़ा अगर जो जानवर 30-40 हज़ार का था तो इस दफ़ा वो आपको 80 और 90 हज़ार में मिलेगा। यही वजह है कि जो अदम दिलचस्पी है ख़रीदारों की जानिब से दिखाई दे रही है। तो अगर व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारी कहते हैं जी अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन वो फिर भी उम्मीद करते हैं कि ईद के करीब पहुँचते ही जो ख़रीदार हैं बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख करेंगे और जो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े प्यार के साथ इन खूबसूरत जानवरों को पाल कर यहाँ पर लाए हैं और यकीनी तौर पर वो इसलिए यहाँ पर इन जानवरों को लाए हैं कि उनको कुछ ना कुछ इजाफा मिले, जो लागत है उससे ऊपर उनको कुछ ना कुछ मुनाफा या प्रॉफिट मिले, इसीलिए वो इतनी मेहनत करते हैं। और ख़रीदारों की भी ये कोशिश होती है ईद के करीब पहुँच के कि उनको अच्छा और मुनासिब खूबसूरत जानवर मिले जो ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान हो। तो बड़ी तादाद में जो मवेशी हैं यहाँ पर मवेशी आने का जो सिलसिला है वो इसी तरह ईद के रोज़ तक जारी। ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। 13 आरजी मवेशी मंडियों के इंचार्ज और फोकल पर्सन नामजद कर दिए गए हैं। कमिश्नर ने इंचार्ज ऑफिसर्स और फोकल पर्सन की नामजदगी की मंजूरी दे दी है। एमओ फैसल शहजाद ने इंचार्ज फोकल पर्सन की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस हवाले से किन किन अफराद को फोकल पर्सन नामजद किया गया है जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में अब 11 की बजाय 13 आरजी मवेशी मंडियां लगेंगी और जो कि आज से ऑपरेशनल होनी है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के रेगुलेशन हेड की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि कौन किस मंडी का इंचार्ज और फोकल पर्सन होगा। इंचार्ज और फोकल पर्सन की नामजदगी का जो बाकायदा नोटिफिकेशन किया गया है। आपको ये बताएँ कि जो 13 मवेशी मंडियाँ लगेगी इनमें इंचार्ज और फोकल पर्सनस भी तैनात किए गए हैं जो कि म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, शामियाने, सिक्योरिटी और दीगर अलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो लाइजन में होगी और तमाम ये सहूलियात जो है वो मवेशी मंडियों में पहुंचाने के ज़िम्मेदार होंगे इंचार्ज मवेशी मंडियों के और फोकल पर्सन। आपको ये बताएं कि वाघा जून के ज़ेर इंतज़ाम जो लखोडेर में मवेशी मंडी लगाई गई है इसकी फोकल पर्सन तो सिद्रा ज़फ़र ख़ान है, जबकि इंचार्ज नूरुस्सबा वड़ाइच को नामज़द किया गया है। इसी तरह से नश्तर जून की काचा मवेशी मंडी का इंचार्ज राय मंशा ताहर है और फोकल पर्सन मलक नईम अब्बास को मुकर्रर किया गया है। नश्तर जून की पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में भी इंचार्ज जो है वो राय मंशा होंगे, जबकि फोकल पर्सन कलीमुल्ला को नामज़द किया गया है। अजीज़ भट्टी जून की मवेशी मंडी जो कि यूनिवर्सिटी मेन कैंपस बरकी रोड पर लगाई जा रही है, इस मवेशी मंडी में जो है वो हिना फ़याज़ इंचार्ज जबकि आमिर अख्तर भट्ट को फोकल पर्सन नामज़द किया गया है। गुलबर्ग की काचा मवेशी मंडी में जो है वो इंचार्ज आमिर अख्तर भट्ट होंगे, जबकि फोकल पर्सन के लिए मुदस्सर असलम को नामज़द किया गया है। रावी जोन की सगियाँ मवेशी मंडी में पारस ज़ुबैर को फोकल पर्सन व इंचार्ज मुकर्रर किया गया। इसी तरह से दाता गंज जोन के ज़ेर इंतज़ाम उस्मान गनी रोड पर लगाई जाने वाली मवेशी मंडी के फोकल पर्सन और इंचार्ज अली ताहिर को रखा गया है। आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल टाउन के जोन में जो है वो 4 मवेशी मंडियाँ लगेंगी और चारों के जो इंचार्ज है वो सदाकत अली मलिक को लगाया गया, जबकि फोकल पर्सनस अलग से नामज़द किए गए हैं। इसी तरह से रायवेंड सुंदर रोड की मवेशी मंडी का इंचार्ज भी सदाकत अली मलिक को लगाया गया, जबकि फोकल पर्सन जो है वो यहाँ पर रियाज गुज्जर को नामज़द किया गया है। LDA एवेन्यू 1 की मवेशी मंडी का इंचार्ज भी सदाकत मलिक होगा, जबकि वहाँ पर फोकल पर्सन के लिए शहजाद साबर को नामज़द किया गया है। तो फोकल पर्सनस की ज़िम्मेदारी होगी कि मंडियों को जो तयशुदा SOPs हैं उसके मुताबिक ऑपरेशनल रखें और वहाँ पर मवेशियों के लिए और व्यापारियों के लिए जो सहूलियात के SOPs दरामद कराएंगे।
SOPs पर अमल दरामद कराएंगे राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड अली एडिटोरियम में डेंगू आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की सेमिनार में खसूसी तौर पर शिरकत। AC मॉडल टाउन सोनिया सदफ, जबकि DHO हेल्थ राजा जुबैर की शिरकत। DDHO गुलबर्ग टाउन डॉक्टर फरीद मसूद राना की भी शिरकत। मजीद अहवाल जान लेते हैं उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अली ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ, जहाँ पे डेंगू से मुतलिक आगाही सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस ने खसूसी शिरकत की। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा सर, ज़िला इंतज़ामिया डेंगू के हवाले से क्या इक़दाम कर रही है? जी, डेंगू का आपको पता है कि इस वक्त जो है वो मानसून, प्री मानसून और मानसून की वजह से हमारी जो थ्रेट है वो बढ़ जाती है। साल का ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे हम तमाम काम छोड़ के जो है वो डेंगू की सर्विलेंस पे लग जाते हैं। वैसे तो पिछले चंद सालों से डेंगू की सर्विलेंस सारा साल हम करते रहे हैं। हमारे लिए जो लम्हा फ़िक्र है वो ये है कि डेंगू इस वक्त दुनिया के 132 ममालिक में एंडेमिक है, जो कि आज से 25-30 साल पहले हेल्थ की किताबों में सिर्फ एक पैराग्राफ की शक्ल में मौजूद था। वो दुनिया के 132 ममालिक में एक सीरियस थ्रेट के तौर पर मौजूद है। WHO ने सन 2018 में डेंगू को दुनिया की टॉप 10 डिजीज़ में भी शामिल किया, या हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी शामिल किया, और पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। पाकिस्तान के अंदर अब हमें हर साल देखने को मिलता है कि हमें सर्विलेंस जो है वो ज़्यादा फोकस्ड सर्विलेंस करनी पड़ती है। कुछ ये कि इन दिनों में जब मौसम बहुत ज़्यादा साज़गार हो जाता है तो इसकी जो फैलने की तादाद है वो बहुत बढ़ जाती है। पिछले दिनों बारिश हुई है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश के 7 से 10 दिन के बाद हमारे पास केसेस जो है उनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली ये केसेस अनअवॉइडेबल है, लेकिन ये बात ज़रूर हम कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि जहाँ से केसेस आएँ उनका प्रॉपर हम केस रिस्पॉन्स करें। सबसे पहले तो हम ये इंश्योर करें कि हम ये फाइंड आउट करें कि केस जो आया है वो मुमकिन तौर पर उसको मच्छर ने किस जगह पर काटा होगा। ये तभी मुमकिन है कि हर केस की ट्रैवल हिस्ट्री ली जाए, उससे जाके कोई समझदार एटलीस्ट डॉक्टर जो है वो जाके उसका इंटरव्यू करे और उससे पूछे कि और इस बात की जांच करे कि कहाँ से उसको उस मच्छर ने काटा होगा, और फिर उस जगह पे जाके ये इंश्योर किया जाए कि वहाँ पर मच्छर या लार्वा या उनके लार्विसाइडिंग की जितनी भी ऐसी मुमकिन जगह हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। जी बिल्कुल, ये आपने कमिश्नर लाहौर की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि मानसून के मौसम में डेंगू की अफजाइश वो बढ़ जाती है। ठीक है उमर डार, आपका बहुत शुक्रिया।